Namaste everyone. My name is Shruti Mishra. I'm assistant professor in Government Girls College, Ratangarh. And today I have brought a very special video which is based on the theme of answer writing strategies for English literature students. Because exam season is just about to begin, 10th and 12th has already been there and soon BA, MA, all exams are going to begin. And in the exam, one of the most important thing that students struggle with is the thing that is how to write answers, how to get good marks into the paper. And especially they struggle with those long answers like 10 marks, 20 marks, 200, 500 words questions that come in the examination. So keeping all those struggles in my mind, I have tried to simplify answer writing strategy for all of you. So if you are someone who are struggling with how to write answer, I think this video can help you certainly. And for today's video, we'll try to answer and learn the technique how to answer this very popular question, which is how to write a critical appreciation. So in the exam they write a critical appreciation of a poem. So in this video we'll learn how to write a critical appreciation question into a step by step approach. So without wasting any time, let's begin. So to understand how to write answers of critical appreciation, first thing that we have to understand is what is critical appreciation, because ये समझे बिना हम इसके आंसर्स को कभी ढंग से लिख ही नहीं पाएंगे. So first and foremost, let's explore what is critical appreciation. So critical appreciation is a thoughtful and detailed analysis of what? Of poem's form, content, as well as historical and cultural context. And it is also a evaluation of what? Effectiveness of poets use of literary technique. और ये सारी चीजें क्यों की जाती है critical appreciation में? It is done to understand the meaning and significance of the poem. I hope this is clear. So it is a detailed analysis, form, content, context, evaluation होता है poets effectiveness का. And ये क्यों किया जाता है? For meaning and significance. This is, I think, core of critical appreciation. And how it is approached? It is approached by breaking down the poem. And how we break down? We break down into stanzas, lines, and words, and then we analyze it for form, content, context हो गया, आपकी techniques होगी. So that's basically critical appreciation. I will explain it in a more simpler way through the use of this diagram. And here let's understand it once more time. So critical appreciation of poem, as I just mentioned, involves these steps. तो जब भी आपको किसी भी चीज का critical appreciation करना है, especially जब आप poem में ये आंसर आपसे पूछा जाता है लिखने के लिए, तो हमें कैसे अप्रोच करना है? हमें सबसे पहले उस poem का context समझना है. Then we have to write content of that poem. Then we have to go for form and structure, and then we go to explore language, and we do all these things with the aim to find out overall meaning and significance of the poem. और जब हम इन चारों पांचों steps से गुजरते हैं, तब जो हम लिखते हैं या जो हम निकाल के लाते हैं अपने आंसर्स में, उस चीज को बोली जाती है critical appreciation of poem. And what I've seen most of my students making a mistake into, generally वो क्या करते हैं, पूरा समरी लिख देते हैं और and they say मैम हमें नंबर नहीं आते, because critical appreciation समरी से बहुत ज्यादा है. ठीक है, इसमें आपको इतने सारे लेवल्स में गुजरना पड़ेगा, उस पोएम को इतने सारे लेवल से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके जो आप निकालते हैं, जो आप लिखते हैं, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आता है, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन. आई होप स्कोप ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मॉडल बताने वाली हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. और यदि आपको ये मॉडल समझ में आ गया तो आपको किसी भी आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. दिस मॉडल आई कॉल DIA मॉडल ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम. तो जब भी आप किसी पोएम को पढ़ते हैं और जब भी आप उसका आंसर लिखना चाहते हैं, तो हम इन 3 लेवल से गुजरेंगे. सबसे पहला लेवल है डिस्क्राइब. डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज के फैक्ट्स को निकालना. जो जैसा है उसको वैसे ही बताना इज डिस्क्राइब.
is a process of describing. So first step in the critical appreciation is describing. And what you will describe? You will describe what poem is all about. जब आप इसको answers में लिखने जा रहे हैं तो आप इन areas से निकलेंगे. What poem is all about? Then you will describe the main idea. You will comment on title. You will give the summary of stanza wise. Then you will talk about theme, structure, forms. You will go for literary devices, figure of speech. इन सारी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, then we describe them. This is the first step. Clear? It's like you have read the poem and after reading the poem you collect the information. जैसे कोई मिस्ट्री नॉवल होता है, मिस्ट्री प्लेज होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, थ्रिलर में क्या होता है, आप पहले एविडेंसेस कलेक्ट करते हो, अच्छा ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये सुराग है, ये सुराग है. सिमिलरली जब आप पोएम को भी अप्रोच कर रहे हैं, आप पहले जितना भी मैटर है आपके पास, जितनी भी चीजें उसको आप कलेक्ट करते हैं एंड फिर आप उसको आंसर में एज इट इज डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्लियर? दैट्स द फर्स्ट स्टेप. देन वी कम टू द सेकंड स्टेप, दैट इज इंटरप्रेट. इन दिस पोएम जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, इन दिस स्टेप आप इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं, यू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाई पोएट यूज इट ओनली? आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई, यही क्यों यूज किया, यही फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज किया, यही टाइटल क्यों रखा, यही स्ट्रक्चर क्यों है, यही फॉर्म क्यों है. सो इफ डिस्क्राइब इज कलेक्टिंग व्हाट, देन इंटरप्रेट वुड बी answering why, giving the answer of why. And then you look for deeper and hidden meaning, and then purpose and impact of it इज एक्सप्लोर्ड, कि इन सबको यूज करने का, ये चीज लिखने का, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करने का, ये थीम यूज करने का पोएट का पर्पस क्या था. इन क्वेश्चंस को आप इंटरप्रेट स्टेज में एक्सप्लोर करते हैं. देन वी कम टू द एनालिसिस स्टेज. एनालिसिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द इंटरप्रेट, जिसमें आप और फर्दर आगे जाते हैं और आप ये चीज करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन था व्हाट और व्हाई को एक्सप्लोर करने के बाद यू आस्क हाउ इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल मीनिंग, कि ये चीज ने ओवरऑल मीनिंग को कैसे कंट्रीब्यूट किया है. वॉज पोएट सक्सेसफुल? जो पोएट करना चाहता था क्या वो कर भी पाया है या नहीं कर पाया है. देन यू आंसर दिस, इज इट स्टिल रेलिवेंट, या चीज ये पोएम जो लिखी गई थी वो अभी भी रेलेवेंट है. एंड देन यू कंक्लूड विद अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम पोएम, कि आपका उससे क्या कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, आपको उसने कैसे अफेक्ट किया है. सो दिस इज अ DIA मॉडल विच आई हैव क्रिएटेड फॉर क्रिटिकल एप्रिसिएशन. तो जब भी आपको किसी भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है, यू स्टार्ट विद what is given in the poem. आप सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते, लिखने की कोशिश करते हैं. देन यू गो वन स्टेप फर्दर, देन यू आंसर व्हाई, ये ही क्यों लिया है. एंड फाइनली उस वाई को भी एक ओवरऑल थीम, ओवरऑल सिग्निफिकेंस, ओवरऑल मैसेज से आप कनेक्ट करके अपना कनेक्शन और सिग्निफिकेंस के साथ जोड़ के आप उसका एनालिसिस करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी मूव फर्दर. अब मैं आपको कुछ चेकलिस्ट देने वाली हूँ, जो चेकलिस्ट आप जब लिखने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजों का आप ध्यान में रखेंगे. तो जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप अबाउट द पोएम के बारे में लिखते हैं. कैसे? तो ये दो चीजों के अराउंड है. आपको याद है पहला पिक्चर जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ये चीज होनी चाहिए. अब उसी को हम फर्दर आगे समझने की कोशिश करते हैं. तो अबाउट द पोएम में फर्स्ट थिंग जो आप राइटर में देखेंगे या जो पोएम के अंदर आप देख के लिखने की कोशिश करेंगे, यू विल फर्स्ट गो फॉर राइटर, किसने लिखा है, किस एज में लिखा है, किस डेट में लिखा है. क्लियर? सो हु रोट इट, व्हेन एंड वेयर इट पब्लिश. तो ये सारी जी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे डिस्क्राइब फेज में. एंड उसी के साथ आप इंटरप्रेट एंड एनालिसिस भी साथ साथ करते रहेंगे कि हाउ ऑथर्स टाइम एंड पर्सनालिटी क्रिएट द मीनिंग ऑफ पोएम. यदि वो पोएम रोमांटिक एज में लिखी गई तो उसका क्या इम्पैक्ट है, यदि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी है या वो पोएम यदि T.S. Eliot ने लिखी है फॉर दैट मैटर, तो हाउ दैट राइटर इन्फ्लुएंस द पोएम. तो ये सारे क्वेश्चन को आप इंटरप्रेट और एनालिसिस में साथ साथ लिखने की कोशिश करते हैं. देन सेकंड स्टेप जो आप अपने उसमें पॉइंट डाल सकते हैं वो है एनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरी अटैच विद द पोएम. कभी कभी क्या होता है पोएम्स में बहुत सारी चीजों की एक स्टोरी होती है. सो फॉर एग्जांपल प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय W.B. Yeats, इट इज रिटन फॉर हिज डॉटर. तो उसमें आप देखेंगे कि एक स्टोरी है. देन कोई पोएम होती है किसी की डेथ पे लिखी जाती है, किसी की वेडिंग पे लिखी जाती है,
तो ऐसी कोई स्टोरी आपको यदि मिलती है जिससे पोएम का कोई ना कोई कनेक्शन है, आप ऐसी स्टोरी, कोई इन्फ्लुएंस है, कोई रीजन है, वो आप उसके बाद लिख सकते हैं। एंड इंटरप्रेट और एनालिसिस फेज में आप हमेशा ये क्वेश्चन करेंगे कि इससे मीनिंग को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, मीनिंग कैसे क्रिएट हो रहा है। Okay, then you look for is it is attached, this poem is related with any movement. So for example, क्या ये metaphysical poetry से related है, romanticism से related है, modernism है, जो भी movement है आप उसको उसमें place करेंगे. And then interpret analysis phase में you can ask how the poem represented. So if it is a modern poet, do the poem has all that qualities, does the poem follows all that. तो ये सारे क्वेश्चन आप साथ में लेके चलते हैं. Then you explore genre. जॉनर मीन्स कि किस कैटेगरी में है, क्या ये पोएम सोनेट है, एपिक है, कपलेट है, फ्री वर्स है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे. देन वाई पोएट यूज इट, पोएट ने सोनेट ही क्यों लिया, पोएट ने एपिक ही क्यों लिया, पोएट ने कपलेट ही क्यों लिया, ये सारे क्वेश्चन आप लेके चलते हैं. देन वी एक्सप्लोर टाइटल, वी आइडेंटिफाई सेंट्रल आइडिया, वी गो फॉर रेफरेंस, यदि वो टाइटल कहीं से लिया गया है, कोई रेफरेंस है उसके साथ, तो आप वो चीजें देखेंगे. देन समरी पे हम आते हैं, स्टैंजा वाइज समरी आप देते हैं और हाउ इट बिल्ड्स टू द मीनिंग. एंड देन फाइनली वी कम टू द थीम, एंड थीम में आप मेजर थीम्स, मेजर आइडियाज और ये मीनिंग को कैसे है. तो इन सारी पॉइंट्स के अराउंड आप अपने आंसर्स को बिल्ड करेंगे. क्लियर? सो आपने आंसर लिखना चालू किया, मैं आपको एक सैंपल भी दूंगी, बट जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, सो आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन से आपने स्टार्ट किया, आप राइटर, एज, डेट, इंटरेस्टिंग स्टोरी, मूवमेंट, जॉनर, इन सारों को इंक्लूड करके आप अपने आंसर्स में डालेंगे, तब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने में अच्छे से सफल हो पाएंगे. क्लियर? नाउ अबाउट द पोएम, पहला आपका आ गया. सो पहला आपका पहला स्टैंजा जो है पूरा का पूरा आप इसके अराउंड बिल्ड कर सकते हैं. Then after content and context is clear and written in your answers, second चीज जो आपको एक्सप्लोर करनी है और अपने आंसर्स में डालनी है वो है आपका पोइटिक फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज. अब आप कंटेंट से फॉर्म पे आ जाएंगे, अब आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको क्रिटिकली एनालाइज करें. और कैसे आप करेंगे? स्ट्रक्चर क्या है, फॉर एग्जांपल ड्रामेटिक मोनोलॉग है या फ्री वर्स है या कोई भी स्ट्रक्चर है फॉर्म का, आप उस पे जाएंगे. व्हाई इट इज यूज्ड, यही क्यों यूज किया गया, इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे इंटरप्रेट एंड एनालिसिस में. राइमिंग स्कीम देखेंगे. देन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड हु इज द स्पीकर, इज द पोएट हिमसेल्फ इज अ स्पीकर और समवन एल्स इज अ स्पीकर. टोन क्या है, इमेजरी क्या है, आप इन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे. And then finally you will go for figure of speeches and symbol. So these are few checklists that you can have for yourself. And then finally in the last conclusion part you look for these things. What you look for meaning and significance. And into meaning and significance, intertextuality आप देखेंगे, क्या वो पोएम किसी और चीज का रेफरेंस दे रही है आपको. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टी.एस. इलियट की लव सॉन्ग बाय जे.एल. प्रूफटोट है, इट गिव द रेफरेंस टू दांते के वर्क से रेफरेंस है. कहीं कहीं पे आपको वेस्टलैंड में बहुत सारे आपको इंटरटेक्चुअलिटी मिलेगी. तो कभी भी आप किसी भी पोएम को देखते हो तो कभी उसके टाइटल में, कभी उसके अंदर स्टोरीज में, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स की बहुत सारे रेफरेंसेस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे. बहुत सारे रेफरेंसेस जो है आप उनको समझेंगे और उनको लिखने की कोशिश करेंगे. टेनिसन में आपको बहुत सारे माइथोलॉजिकल रेफरेंस मिलेंगे, ग्रीक कल्चर के रेफरेंस मिलेंगे, रोमांटिसिज्म में आपको मिलते हैं, तो वो सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करेंगे. Then relevance in the present time, and it is very important thing that we have to ask when we are concluding कि क्या वो पोएम आज भी रिलेवेंट है, क्या वो पोएम आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से कनेक्शन रखती है, क्या आज की थीम्स भी उसमें हमें यूनिवर्सल वैल्यूज दिखती है या नहीं दिखती. दिस इज द नेक्स्ट थिंग विल एक्सप्लोर. देन फाइनली आपके साथ उसका कनेक्शन क्या है, डू यू हैव एनी फेवरेट लाइन, क्योंकि कभी कभी हम पोएम्स पढ़ते हैं तो कुछ लाइन्स हमारे दिमाग में अटक जाती है, कुछ लाइन्स हमें बहुत अफेक्ट करती है, समटाइम्स disturbs us, some like entertain us. तो ऐसी कोई लाइन है, ऐसा कोई कनेक्शन है उस पोएम के साथ, तो do make note of that in your critical appreciation. And finally we'll do the conclusion part. Clear? Now just overall checklist, I have put it here like this. तो जब भी आपको आंसर लिखना है तो आप इन सब चेकलिस्ट को ध्यान में रख के अपने आंसर्स को बनाने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे जितने हैं ये आपकी हेडिंग्स हो सकते हैं, सब हेडिंग्स आंसर्स में आप अपने आंसर्स को हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं. सो यू कैन हैव इंट्रोडक्शन और अबाउट द पोएम, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट हेडिंग कर सकते हैं, और आप चाहे बिना हेडिंग के भी पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू विल कीप इन योर माइंड. सो अबाउट द पोएम, इसके अंदर आप किन किन चीजों को लिखेंगे,
कॉन्टेक्स्ट, एज, कंटेंट, टाइटल, समरी, मेन आइडिया, थीम्स, और इनको तीनों लेयर्स पे लेके जाएंगे। उसको डिस्क्राइब फैक्ट्स लेकर आएंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे और उसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस भी लेके चलेंगे। देन अबाउट द पोइटिक फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स, उसमें आपका राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। देन लैंग्वेज, टोन, इमेजरी, सिंबोलिज्म, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, कनेक्शन विद द सेल्फ की बात करेंगे, एंड फाइनली विल कंक्लूड। I hope this structure, this checklist of answering the question critical appreciation of poem is little clear. It is giving you, I think, little bit clarity and structure how to approach your answers. Okay. Now, this was a theory part for you. I gave you the structure. I explained you the points checklist. Up second part of this video, I will explain this with an example. So for purpose of that, I have chosen a poem which is very commonly you can find in any syllabus, and I will go through that poem and show you the answer also so that you can get कि इनको आप writing में कैसे explore करेंगे. ठीक है, चलो. So here we come. So the poem that I've chosen, because it was a request from one of my student, and for that I have chosen this poem. So here we begin. So the poem that I've chosen is My Last Duchess. If you are aware of this poem very well, if you are not aware, I will just give a quick summary of this poem so that when you go to the sample answers, you can have that connection. Okay. So My Last Duchess is a poem रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. इस पोएम में जो मैंने पिक्चर्स भी लगाई है वो आपको ये समझाने के लिए लगाई है कि जब आप पोएम को पढ़ते हैं तभी आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, सिंपल समरीज का मेन आइडिया क्या है कि एक पेंटिंग है, क्लियर, लास्ट डचेस की पेंटिंग है, एंड ड्यूक जो है वो एक अनदर पर्सन को उस पेंटिंग के बारे में बता रहा है. सो इट्स लाइक here's the painting, ये ऐसी थी लेडी, ये ऐसी थी. That's the plotting of this poem. ठीक है. And उस process of telling about that picture, what that speaker he reveals about his character, he reveals about his relationship with his wife, he reveals about his possession, his jealousy and everything, and he comments about all the society, patriarchal society. बहुत सारी चीजें उस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में निकल के आती है. आई होप हल्का फुल्का इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ आपका. सो मतलब मैं थोड़ा क्विकली लेके जाऊंगी आपको, बिकॉज हियर पर्पस इज नॉट यू टू एक्सप्लेन द पोएम. Here purpose is to get into the idea. यदि ये पोएम आपने पढ़ी हुई है और आपको इसका थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इसके आंसर्स को कैसे लिख सकते हैं. क्लियर. तो जस्ट क्विकली विल गो थ्रू इट. सो जब भी आप पोएम पढ़ रहे हैं तो मैंने इसीलिए इस पे अंडरलाइन वगैरह भी किया हुआ है. सो दैट्स माय लास्ट डचेस. तो पहले सबसे पहले आपने टाइटल देखा, माय लास्ट डचेस. तो माय हियर रिप्रेजेंट पोजेशन, मेरी है. ओके. लास्ट हियर रिप्रेजेंट कि इट्स इन सीरीज ऑफ समथिंग, कि ये पहली नहीं थी, लास्ट है, इसके पहले भी थे, इसके बाद भी होंगे. सो इट शोज द प्रोसेस. एंड डचेस हियर शोज द पावर, कि कोई रैंडम लेडी की बात नहीं हो रही है, एक पावरफुल लेडी की बात हो रही है. सो माय लास्ट डचेस. यू रिमेंबर क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम वर्ड, लाइन, स्टैंजा को ब्रेक करेंगे, तो दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट. देन माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, पेंटिंग है. उसके बाद फ्राफ लोग ने उनको पेंटिंग को बनाया है, एंड देन वो स्लोली एंड स्लोली उस पर सारा वो बताते हैं कि ये कितने पैशन के साथ बनाई गई थी, एंड हाउ द लेडी वॉज, वो सबके साथ हंसती थी. एंड यहाँ पे एक और चीज आपको बोली गई है कि आई पुट द कर्टन ओनली माई, मेरी परमिशन से ही कोई इसको देख सकता है. इट शोज द कंट्रोलिंग नेचर, पॉजेसिव नेचर. इन स्पाइट ऑफ death of that lady, he wants to control her. Okay, so that's few things got revolved into this thing. And in the next, further he talks about the character of her duchess, ki she's too easily impressed, she looked everywhere, she smiled very frequently. And here's very interesting thing is that कि कोई यदि उसके लिए बाग से फूल भी ले आता था या थोड़ा सा अमरूद तोड़ के ले आया, कुछ भी तोड़ के ले आए, सिंपल थिंग्स ऑफ काइंडनेस यूज्ड टू इम्प्रेस हर. In the same way, then my expensive, like my gift of 900 years old name also impressed her the same way. So it tells about the character of both the personality here, the duchess and the duke. So duchess is a very simple lady. She used to enjoy everything. She used to have, you know, find happiness in the small things. She doesn't have that aura of power and all that stuff. And duke was not
liking that, and that's what we see in these lines. तो story की goes on and वो सारी चीजें समझता है. एंड फाइनली यहाँ पे आपकी लास्ट लाइन आती है, वो पूरा उसका प्रोसेस चलता है. आई गेव कमांड देन ऑल स्माइल स्टॉप्स टुगेदर एंड देन वी कम टू नो, सरप्राइज ओवर होता है कि इट इज ही हु किल्ड दैट डचेस. उसकी वजह से वो डचेस की डेथ हुई है. एंड ही सो प्राउडली टेलिंग दैट कि आई गेव द कमांड एंड ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर. तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें पता चलती है. ठीक है. एंड देन फाइनली this poem ends with the another process. फिर हमें पता चलता है जिसको वो बता रहा है, he is the what you call court messenger, जो नेक्स्ट प्रपोजल उसके लिए लेकर आया है. तो वो पहले वाली लेडी की, पहले वाली वाइफ की कहानी सुना के उसको अपने बारे में ही इज डूइंग ऑल दैट स्टफ, बैकग्राउंड बिल्डअप कर रहा है कि, और उसके बाद डाउरी की बात कर रहा है, एंड देन मैं कैसा हूँ, मैं इसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो. वो पूरी कहानी उसको बता के अगले प्रपोजल के बारे में, फ्यूचर के बारे में वो कॉन्टेक्स्ट देके पोएम एंड हो जाती है. यहाँ पे ये नेपच्यून वाला जो इमेज है, सी हॉर्स वाला इमेज है, ये आपको उनके कंट्रोलिंग नेचर का एक और ग्लिम्स देता है. So that's, I think, the quick summary of this poem. Why I told this summary just to, यदि किसी ने ये poem नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इसका जब आंसर हम समझेंगे तो आप उसको थोड़ा सा रिलेट कर पाए. क्लियर. तो जब भी आप पढ़ें पोएम तो आप इस तरीके से छोटी छोटी लाइनों को, छोटी छोटी चीजों को, इमेजेस को, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट भी करके दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी चीज क्या बता रही है. तो इस तरीके से आप पढ़े. एंड अब हम आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आंसर राइटिंग सैंपल. तो अभी मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए, जितने भी चेकलिस्ट बताए, अब उन सारी चीजों को हम देखेंगे कि वो आंसर में कैसे दिखता है. क्लियर. तो सबसे पहले यू रिमेंबर फर्स्ट थिंग वाज स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम. सो सबसे पहले यू स्टार्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस, फर्स्ट पब्लिश इन ड्रामेटिक लिरिक्स. ठीक है. तो आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी, आपने डिस्क्राइब किया. तो किसी भी पोएम को आप स्टार्ट करें इस तरीके से, इन्होंने लिखा, इस टाइम पे पब्लिश हुआ. यू कैन सिंपली स्टार्ट लाइक दैट. फिर उसकी कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू रिमेंबर द सेकंड पॉइंट, इंटरेस्टिंग स्टोरी वाला कोई पॉइंट है. तो ये जो पोएम है ये एक फ्रास्टिक पोएम है. एक फ्रास्टिक पोएम क्या होती है? जिसमें वर्क ऑफ आर्ट से एंगेज किया जाता है. तो इसमें आर्ट है एक, वो पेंटिंग से पूरी की पूरी स्टोरी चल रही है. सो ऐसी पोएम जिसमें वर्क ऑफ आर्ट का रेफरेंस लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एक फ्रास्टिक पोएम. तो इसमें आपको एक फ्रास्टिक पोएम का एक रेफरेंस मिला, तो ये उस पोएम की इंटरेस्टिंग चीज है. सो आप ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग रेफरेंस को यहाँ पे डाल सकते हैं. क्लियर. राइटर, एज, ईयर और कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो इस हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. क्लियर. देन विल कम टू द कॉन्टेक्स्ट. उसमें क्या था? दूसरी चीज कॉन्टेक्स्ट. अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये कब लिखा गया? विक्टोरियन एरा में लिखा गया. ये तो आपका डिस्क्राइब वाला फेज हो गया. देन हमें अब इंटरप्रेट और एनालिसिस वाले पॉइंट्स भी लिखने. तो हम कैसे लिखेंगे उसके पॉइंट्स? कि विक्टोरियन एरा में होने की वजह से क्या होता है? इट वॉज अ टाइम व्हेन सोशल हायरार्की एंड जेंडर रोल्स वर रिजिडली डिफाइंड. तो ये एज था जहाँ पे जेंडर रोल बहुत ज्यादा था, और यही चीज आपको ड्यूक के पॉजेसिव नेचर में, उसके वाइफ के कंट्रोल के नेचर में दिखती है. एंड फाइनली ये इसको दिखा भी रहा है, विक्टोरियन एज को क्रिटिक भी कर रहा है साथ में. कैसे? क्योंकि उसने ये भी दिखाया कि ड्यूक का नेचर क्या है, बट साथ में वो ये भी दिखा रहा है यदि ऐसा नेचर होगा तो उसका रिजल्ट कितना डेंजरस हो सकता है. द वाइफ हैज टू डाई बिकॉज ऑफ दिस अनचेक्ड पावर. सो ये दोनों चीज इसमें दिखा रहा है. सो यू अंडरस्टूड, डिस्क्राइब किया हमने, प्लेस किया उसको कॉन्टेक्स्ट में, विक्टोरियन एरा के कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको प्लेस किया, और उसके बाद हमने क्या किया? हमने उसको इंटरप्रेट और एनालाइज साथ साथ में किया. क्लियर. देन फाइनली वी कम टू द कंटेंट. अब यहाँ पे आप वो जो मेन आइडिया है उसको आप लिख देंगे. So My Last Duchess is a dramatic monologue जिसमें Duke of Ferrara is showing a painting of his late wife Duchess to an envoy. The Duke describes his wife as flirtatious, unfaithful and admits that he had killed her for perceived infidelities. तो हमारा जो मेन आइडिया क्या हो रहा है कि एक बंदा किसी को दिखा रहा है, उस पेंटिंग को दिखा रहा है और वो एडमिट कर रहा है कि मैंने इसको इसलिए मार दिया. सो दैट्स द मेन आइडिया. इस तरीके से आप समरी करके मेन आइडिया को बता सकते हैं. फिर फाइनली थीम्स पे हम आएंगे. सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे व्हाट इज अ सेंट्रल थीम. तो सेंट्रल थीम इन दिस पोएम इज पावर एंड कंट्रोल. ठीक है. फिर आप अदर थीम्स पे जाएंगे, जेंडर रोल, जेलसी, डेंजर ऑफ अनचेक पावर एज अदर थीम्स. एंड फिर उसके बाद पोएम्स एक्सप्लोर
कैसे कर रहा है ये थीम? बाय विविड इमेजरी, आइम्बिक पेंटामीटर, इनसे वो चिलिंग एंड डिस्टर्बिंग पोर्ट्रेट ऑफ ड्यूक ट्विस्टेड मेंटेलिटी एंड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को बता रहा है। इन सारी चीजों से वो कैसे एक्सप्लोर कर रहा है? ड्यूक की पर्सनालिटी को बता रहा है। क्लियर? सो इस तरीके से आप थीम लिखेंगे। फिर आप टाइटल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वही माई लास्ट डचेस, जो मैंने वहां पे भी आपको बताया था लास्ट में कि ये पहली वाइफ में ये प्रोसेस चल रहा है। माई से आपको क्या पता चल रहा है? ड्यूक सेंस ऑफ ओनरशिप, एंड डचेस मीन्स कि शी इज अ हाई स्टेटस लेडी, कि किसी गरीब लड़की की कहानी नहीं है, हाई स्टेटस के लोगों के साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रहा है। सो नो मैटर वेयर यू रीच इन योर लाइफ, बीइंग अ वुमन इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। दैट्स अ पॉइंट वी गेट द आइडिया फ्रॉम द टाइटल। उसके बाद आप फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फॉर्म में भी आपने डिस्क्राइब कर दिया पहले की पोयम आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, कंसिस्ट ऑफ 56 लाइन है, राइमिंग स्कीम ए बी बी है। अब उसके बाद आप उसको कैसे उसको इंटरप्रेटर एनालिसिस करेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्या पता चल रहा है? हिज थॉट्स एंड फीलिंग टू रीडर इनडायरेक्टली। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि आप वन इज स्पीकिंग एंड समवन इज लिसनिंग, एंड हु इज लिसनिंग इज नॉट ऑडियंस, तो आप इनडायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोनों की बात से हमें उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है। सो दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। एंड राइमिंग कम्प्लीट से क्या पता चल रहा है? राइमिंग कम्प्लीट फॉर्म है। स्ट्रक्चर की बात है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, बट साथ में वो कॉन्ट्रास्ट किससे कर रहा है? उनकी सिक्योरिटी से, एंगर से। तो ये चीज यहाँ पे होगी। फिर आपकी स्ट्रक्चर की बात है कि स्ट्रक्चर कैसा है उसका। एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे आगे आ रही है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं हो रहा है, तो एक सेंस आगे बढ़ रहा है। उससे क्या, उसके फ्लो ऑफ के बारे में पता चल रहा है, टेंशन कैसे क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। देन एग्जामिन द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पे फिर आप आएंगे जब आप आंसर लिख रहे हैं। रेथोरिक क्वेश्चन है, एंजायमेंट है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, आप पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं उसमें कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। सो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ड्यूक वर्ल्ड में एंट्री मिलती है, क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ जब मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूंगी तब मैं अपने आप को और बेटर तरीके से समझा पाऊंगी। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंटीमेसी और इंटीमेसी के बारे में बात करता है। क्लियर? देन माई, बार बार उस पोयम में माई वर्ड यूज होता है, तो आप ऐसे वर्ड्स को पकड़ेंगे और उसको लिखेंगे अपने आंसर्स में। माई लास्ट टचेस, माई ऑब्जेक्ट, माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर ओल्ड नेम। ठीक है, सो ये सारी चीजें जिससे क्या पता चलता है कि वो कंट्रोल करना चाह रहा है। टोन एंड इमेजरी की बात करेंगे, इसकी टोन कैसी है? कोल्ड, कैलकुलेटिव एंड डिटेच टोन है, और उससे चिलिंग इफेक्ट पड़ रहा है मेंटलिटी और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का। फिर इमेजरी आ रही है कि कर्टन ड्रॉन, मैंने ही वो पर्दा खोला, मैंने ही वो पर्दा बंद किया, उससे आपके दिमाग में एक इमेज आ रही है, तो आप ऐसी इमेजेस को, ऐसी टोन को निकाल के अपने आंसर्स में डालेंगे। देन वी कम टू द फिगर स्पीच, तो इसमें मैंने जितने भी फिगर स्पीच है, जैसे मेटाफर है, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, तो ये मेटाफर है, पहले आप मैंने डिस्क्राइब किया, फिर मैंने उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी दिया कि इससे क्या पता चल रहा है? सेंस ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल ओवर हर, ये पता चल रहा है। फिर पर्सोनिफिकेशन है, जैसा सिमिली है, माई गिफ्ट एज इफ लगा के, आयरनी है, देन हाइपरबोले है। तो जितने भी आपको उसके अंदर आपको मिल रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, उन सबको आप एक जगह पे अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। तो एक लाइन में उसको डिस्क्राइब कीजिए, उसका एग्जाम्पल दीजिए, और उससे ओवरऑल मीनिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो चीज आप यहाँ पे डालेंगे। क्लियर? फिर सिग्निफिकेंस, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थी कि वो पोयम आज भी कैसे सिग्निफिकेंट है। तो हियर आई हैव रिटन the significance of My Last Duchess in today's world lies in the exploration of themes that are still prevalent and relevant. The poem examines issues of power, control, jealousy, possession, which are all too present in the modern relationship. ये सारी चीजें आज भी हैं, आज भी जेंडर स्ट्रगल है, आज भी पावर, पोजेशन, जेलसी इम्पैक्ट करती है। एंड देन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कौन सी लाइन ने आपको डीपली अफेक्ट किया, बिकॉज मैंने जब ये पोएम पढ़ी थी, यू नो दिस लाइन स्टिल स्टक विद मी, आई रेड इट इनटू माय बैचलर्स, I gave command or all smiles stopped. You know, it's very disturbing for me how someone can stop and how someone can be so proud of doing that. You know, when you kill someone, you generally are guilty. यदि हमसे कुछ गलत होगा तो हम गिल्टी होंगे, बट फॉर हिम द कैरेक्टर दैट ब्राउनिंग हैज portrayed, he's proud of that thing. So it is a very interesting line for that matter. So this line, how it is important, so it gives you the danger that unpower, नॉट चेकिंग द पावर कैन इम्पैक्ट द सोसाइटी। यदि उस बचपन से यदि वो पेट्रार्कल माइंडसेट को नहीं कंट्रोल किया गया तो वो कहाँ तक ले जा सकता है, ये एक आइडिया देता है। तो इस तरीके से आप उसको इंटरप्रेटर एनालिसिस करेंगे।
एंड फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन में आप सारी चीजों को समराइज करके अपना पॉइंट रखेंगे. Overall, My Last Duchess is a powerful and haunting poem that explores the theme of power, control, and gender roles based on poem's form, language, content, context, technique. It is a critique of Victorian gender roles and social hierarchy. And उसकी जो अभी भी पॉपुलैरिटी है वो ये बताती है कि यूनिवर्सल थीम के साथ वो डील करता है. एंड इस तरीके से आप उसको कंक्लूड कर देंगे. क्लियर? And with this, we have come to the end. Just a quick summary once again so that आपको पता हो कि हमने कैसे लिखना है. So मैंने आपको एक पूरा एग्जाम्पल दिया, एक आंसर लिख के बताया कि यदि इन पॉइंट्स से आपको आंसर बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे. उसी को मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ. आप ऐसे हेडिंग बना के अबाउट द पोएम, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, इसके अंदर इन सारी चीजों को लिखेंगे. फिर पोइटिक फॉर्म, लैंग्वेज, सिग्निफिकेंस, कनेक्शन विद द सेल्फ और कंक्लूजन लिखेंगे. तो जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश कर सकते हैं. आई होप कि ये सिंप्लीफाई वर्जन आपको पसंद आया हो, इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो. एंड दिस वॉज माई जेन्युइन अटेम्प्ट कि मैं इस आंसर राइटिंग को आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूं, बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स रियली स्ट्रगल विद दिस. दे लाइक मैम हमें समझ में तो आ गया है पर लिखे कैसे. वो स्ट्रगल को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी. आई होप मेरी कोशिश आपको पसंद आई हो. आई होप ये थोड़ा सा आपके लिए चीजों को सिंपल करने का माध्यम बना हो. यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और प्लीज इस पैटर्न से लिखने की कोशिश कीजिए. और आपके जो आंसर्स हैं आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं. आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं. एंड आई वुड लव टू गिव यू फीडबैक. और यदि आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सो दैट मैं ऐसा और कंटेंट आपके लिए बना सकूं और आपको और हेल्प कर सकूं. विद दिस वी हैव कम टू द एंड. बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय. थैंक यू एवरीवन.